اب بھی وہاں پر جنگ شروع ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ریاست خاموش ہے۔ یہ ہمارے خیبر ایجنسی کے کوکی خیل قبیلے کے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس، افریدی لوگ، تو کوئی ایسا ایجنسی نہیں ہے کہ جن کے وفود کم از کم میرے پاس براہ راست نہ آئے ہوں، اور یہ سب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ کسی کو گھروں کے معاوضے نہیں مل رہے، سو غریب لوگ ہیں، گھر تباہ ہو گئے ان کے، دوبارہ بنانے کے قابل نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ اتنے طویل اپنے ملک میں ہجرت کا دور مکمل کر کے بھی ابھی گھروں کو واپس نہیں جا سکتے، اور فوج ان کو واپس نہیں جانے دے رہی۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمارے قبائل جو ہیں، میرے خیال میں انضمام سے پہلے کے حالت میں اچھے تھے، انضمام کے بعد میں جو ہے وہ زیادہ پریشان ہیں جی، اور زیادہ قسم کی مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ اب نہ فاٹا رہا نہ سیٹل رہا، اس بیچ میں کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس وقت فاٹا کا عوام مظلوم ہے، مظلوم، اور یہی صورتحال حضرت بلوچستان کی بھی ہے۔ ہمارے ہاں بھی لاپتہ لوگ ہیں، بے تحاشا لوگ ہیں، اسی طرح لاپتہ لوگ بلوچستان میں ہیں، وہ بھی اپنے پیاروں کے لیے رو رہے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بد امنی کی صورتحال ہے، مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں، کنٹرول ان کا ہے، اسٹیٹ کی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ملک کدھر جا رہا ہے، پرائرٹی کو طے کرنا چاہیے، ترجیحات کیا ہیں ہماری، اس پر حکومت نہیں سوچ رہی۔ آج پشاور میں ایک سیمینار ہوا ہے فاٹا مرجر کے حوالے سے اور قبائل کے مسائل کے حوالے سے، اور سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے فاٹا مرجر کا فیصلہ کیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ بھی اس میں شریک تھے، اور اس وقت کے چیف سیکریٹری اور اس وقت کے جتنے بھی ڈائریکٹر تھے وہ آج سارے مل بیٹھے تھے، اور انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ فاٹا کے عوام کے ساتھ جو وعدے ہوئے ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ کیا آئینی ترمیم میں قبائلی علاقوں کے مسائل اور ریسورسز اور یہ جو مرجر کے ایشوز ہیں، کیا اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ خاقان عباسی صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے، اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور وہ سارا پس منظر ان کو معلوم تھا۔ خاقان عباسی صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے اس وقت جب یہ ترمیم ابھی نہیں ہوئی تھی، تو 25 مطالبات میں سے 4 مطالبات جو ہمارے تھے جس پر ہمیں اختلاف تھا، اس سے وہ وڈرا ہو گئے تھے۔ وڈرا ہونے کے بعد کہاں سے حکم آیا؟ ظاہر ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ امریکی افسر کون تھا جو آیا اور اس نے کہا کہ فاٹا مرجر از مسٹ، یہ الفاظ وہ ہیں جو میرے سامنے کہے گئے ہیں۔ پھر جناب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، نوید مختار صاحب جنرل وہ ISI کے چیف تھے، پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں پرائم منسٹر کے چیمبر میں مجھے ملے اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بے وقت فیصلہ کر رہے ہیں، ابھی فاٹا مرجر جو ہے اس کے لیے فاٹا کا حالات موافق نہیں ہیں۔ ہم نے بہت تجویزیں دیں لیکن وہ مزید تھے کہ جی امریکہ کا دباؤ ہے، جی امریکہ کا دباؤ ہے۔ تو اگر ہم ملک کے اندر خود مختار نہیں ہیں اور ہم نے ملک کے اندر کے فیصلے اور تبدیلیاں امریکہ کے دباؤ پہ لانی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم ایک آزاد مملکت میں رہ رہے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے ہمارے ملک کے لیے۔ فاٹا کے عوام کے ساتھ انضمام کی صورت میں جو ظلم ہوا ہے آج تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تک ان کو 800 ارب روپے ملنے چاہیے تھے، 800 ارب، اور ابھی 100 ارب مشکل سے ان کو پورے ہوئے ہیں 8 سال کے بعد، ہر سال ان کو 100 ارب ملنے تھے۔ تو اس فاٹا کے عوام نے کیا جرم کیا ہے؟ فاٹا کے عوام نے تو ملک کا دفاع کیا ہے، وہ آپ کا ایک سرحدی دفاع کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اس لیے ان اجتماعات سے اور سیمیناروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، کہیں کہ ہم نے فاٹا کے عوام کے ساتھ ظلم کیا تھا، ہم نے جبر کیا تھا، اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی، اسٹیٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں، گورنمنٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پھر فاٹا کے اندر لائیں ریفرینڈم کو اور عوام سے پوچھیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ زبردستی ہم دنیا میں قوموں پہ جبر کر رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں، تو یہ جو فیصلے ہوئے ہیں حضرت پہلے سوچنا چاہیے، اب بعد از مرگ واویلوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کل علی امین لہو نے ایک بیان جاری کیا، باقاعدہ اس کے خلاف کا اعلان کیا ہے، یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ درمیان میں نہ آئے، اب کوئی اگر ایک گولی ماریں گے تو وہ 10 گولی کھائیں گے، آج ہم انقلاب شروع کریں گے۔ باقاعدہ انقلاب کا اعلان کیا کہ میں انقلاب کا ہوں۔ آپ ایک سینئر سیاستدان
किस नज़र से देखते हैं? मेरे ख्याल में मैं तो इस बयान को इस काबिल भी नहीं समझता कि इसका जवाब दूं। मैं अपनी तौहीन समझता हूं ऐसे लोगों की और ऐसे लोगों के बयानात की। मेरे नज़दीक ऐसे बयान की कोई हैसियत नहीं है, ये ऐसी एक बड़बोला है। तो इसकी क्या ज़रूरत है ऐसे बयान देने की कि आप स्टेट के अंदर, सूबों के अंदर जंग की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। जलसे हैं तो जलसों के अपने ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, सूबों की पार्टियां मौजूद हैं, सूबे की पार्टी रद्द-ए-अमल दे सकती है। जिस सूबे में होता है, आप अगर ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो अपने सूबे में करें, लेकिन अगर दूसरे सूबे में आप करते हैं और वहाँ गवर्नमेंट आपको इजाज़त नहीं दे रही है तो फिर इस पर सूबा को और गवर्नमेंट को क्यों तसादुम का हिस्सा बनना चाहिए? पार्टी है ना, पार्टी को अपना हक हासिल है कि वो जलसे में भी जाए, वो एहतजाज भी करे। यानी मैं ज़ाती तौर पर जलसे को रोकना इसको गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। हुकूमत को तंग नज़री नहीं दिखानी चाहिए, जलसे की इजाज़त PTI को मिलनी चाहिए। जो नहीं दी गई इसको मैं ज़्यादती समझता हूँ, जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ समझता हूँ। लेकिन सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है और इस किस्म के मखलूक से हमारा वास्ता है। तो हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है, इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग? मौलाना साहब, इस वक्त जो दो सूबों में एक जंगी सूरत-ए-हाल नजर आई, एक वज़ीर-ए-आला जाता है दूसरे सूबे में, वहाँ से रोका जाता है, शेलिंग होती है, तो दो सूबों को लड़ाई की तरफ धकेलने का एक अमल है, उसको आप किस तरह देखते हैं और मशवरा देंगे, तनकीद करेंगे क्या? भाई सियासी कारकुन हैं, जहाँ से जाएं जा सकते हैं, अपने जलसे में शिरकत के लिए जा सकते हैं, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। उसको रोकना, मैंने उसकी आपको सामने मजम्मत किया कि ऐसा मुनासिब नहीं है, ये गैर जमहूरी रवैये हैं। लेकिन सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना, इस मनसब पर फायज़ होकर, मेरे ख्याल में ये उसके शाय निशान नहीं है। पार्टी चेयरमैन मौजूद है, पार्टी लीडर मौजूद हैं, सियासी जो जिसके पास कोई सरकारी मनसब नहीं है वो बात कर सकते हैं। जब वो बात कर सकते हैं तो सियासी मनसब पर फायज़ ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है? सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज़ के साथ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लबो लहजा ये सिवाय बचपने के और कोई चीज़ नहीं। इस चीज़ से इख्तलाफ करते हैं कि पार्लियामेंट अवामी नहीं है और आप कभी हुकूमत से कुछ इख्तलाफात हैं, तो क्या आप अपने पार्टी के ज़रिए या अपने तौर पर कुछ इख्तलाफात या कुछ एहतजाज करने की तरफ जा रहे हैं? मैं तो जा रहा हूँ, तो पूरे मुल्क पे जलसे का हमारे से बड़े जलसे किसने किए हैं? हमारे से बड़े मुजाहरे किसने किए हैं? बलूचिस्तान का जलसा था या कराची का जलसा था, पेशावर का जलसा था, मुजफ्फरगढ़ का जलसा था, और अब हम मीनार पाकिस्तान को आपने देखा कि पूरे लाहौर की तारीख़ में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, पूरे लाहौर की तारीख़ में इससे बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ आज तक। तो जितने अवामी सतह पर हम बात कर रहे हैं, आईन और कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, यही पैरवी अगर दूसरे लोग भी करें इसी अंदाज़ के साथ। लेकिन अगर आप स्टेट को धमकियाँ देंगे और फिर उसके बाद जलसे का ऐलान करेंगे, तो मैं जमहूरी अमल के हक़ में हूँ, और जमहूरी अमल को रोकना अगर कोई भी हुकूमत करे, पंजाब की हुकूमत करे, सिंध की हुकूमत करे, मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। लेकिन इस किस्म के बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो दो सूबों को आपस में लड़ाए या एक सूबे को स्टेट के साथ लड़ाए। मौलाना साहब, ये कानून साजी के हवाले से आप अगर उसको सपोर्ट करेंगे, वो भी जिस पर आप एग्री हो, उसके बाद कहा जा रहा है कि आप हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। मैंने असम्बली में बात की है, इससे ज़्यादा ज़िम्मेदार फोरम तो और नहीं हो सकता ना, कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहेंगे, उसके बाद फिर इस बात का क्या पकाना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हम आखिरी बार IMF के पास जा रहे हैं, क्या वाकई आखिरी बार जा रहे हैं? हज़रत, आपका स्टेट बैंक IMF के हाथ में है, आपका बजट IMF तैयार करके दे रहा है। इस किस्म की बातें, सियासी बयान तो हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की पॉलिसियों ने तो हमें ग़ुलाम बना रखा है माशी तौर पर। मौलाना साहब, अगर कल को हुकूमत जेगाई की आती है, मरकज़ियत में हुकूमत बनती है आप लोग की, तो क्या IMF से फिर भी बात होगी उस हुकूमत की? मैं कल की बात आज नहीं बता सकता कि क्या हमें जो सूरत हाल, हर चीज़ में आपकी पॉलिसियाँ मैटर करती हैं। पॉलिसियाँ तदरीजी तौर पर आपको मुश्किल से निकालती हैं। ये नहीं कि आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में तालीम मुफ्त हो गई, और आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में सेहत जो है मुफ्त हो गई, और आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में आप IMF से, हर चीज़ की एक पॉलिसी होती है। हमने जिस तरह अपने सूबे में प्राइमरी से शुरू किया,
और FA-FSC तक किताबें मुफ्त मुहैया के लोगों को हमने एक ज़िले से शुरू किया और 12 अज़ला में A लेवल के हॉस्पिटल हमने बनाए थे। हमने तालीम में कितनी तरक्की की और कहाँ तक हम पहुँचे, ये सारी चीज़ें तदरीजी तौर पर होती हैं, बशर्ते कि आपकी पॉलिसी तो हो। तो जब हमारी पॉलिसी IMF के निजात की होगी तो तदरीजी तौर पर यकीनन हम उनसे आज़ादी हासिल करने की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल में वो गुफ्तगू मुनासिब थी, वो मुनासिब गुफ्तगू थी। मुलाना साहब, एक तो उम्मत मुस्लिमा नफात का शिकार है और दूसरा हमारी रियासत और हमारी हुकूमत की तरबियात वो कुछ और है, हमारी सियासी जमातों की तरबियात भी कुछ और है। ये जो हमारा सूबा फाटा मर्जर के बाद बिल्कुल बराह रास्त लगे अफगानिस्तान के साथ, आप अफगानिस्तान गए, अपने वक्त के साथ गए, मौजूदा दिनों में कोई ऐसी तजवीज़ है कि सियासी जमातें उसमें किरदार अदा करें या आप जैसी शख्सियात उसमें किरदार अदा करें, कम अज़ कम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला दुरुस्त सिमत में चलना शुरू करें? फिदा भाई, मैं इलेक्शन से पहले जा चुका हूँ, मैंने 1 हफ़्ता वहाँ गुजारा है। मैंने तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के रास्ते निकाले हैं। मैंने मुसल्लह गिरोहों का हल भी निकाला है, इनको रिपोर्ट किया है, इन्होंने अप्रिशिएट किया है, लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं उसको आगे बढ़ा सके तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमारे साथ जो हुआ, जिन्होंने स्टेट के लिए इतना कुछ किया, उनके साथ जो हुआ इस सूबे में और बलूचिस्तान में किस कीमत पर हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। हम इतने भी कमज़ोर अपने आप को नहीं समझते कि आप हमें असम्बली से बाहर रखेंगे। हम इन असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे, हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि हम सरेंडर हो रहे हैं, हम सरेंडर नहीं हैं, हम बाकायदा मैदान में हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा अंदाज़ बिल्कुल आइन और कानून के दायरे के अंदर जमहूरी अंदाज़ है, सियासी अंदाज़ है। हम ऐसे माहौल पैदा नहीं करना चाहते। सवाल सारे उनसे हैं, स्टेट से हैं कि जिस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आप 2010 से लड़ रहे हैं, स्वात से लेकर पूरे पश्तूनख्वा को आपने बेघर कर दिया, हमारी इज़्ज़तें घरों से निकल गईं, दर बदर हो गई, आज तक मुहाजिर हैं अपने मुल्क के अंदर, और आज उससे कई गुना ज़्यादा मुसल्लह गिरोह इस वक्त हमारे यहाँ डेरा इस्माइल ख़ान में, लक्की मरवत में, टांक में, पन्नू में, वज़ीरिस्तान में इस वक्त जब हम और आप बैठे हैं तो थाने बंद हो जाते हैं और सड़कें इनके हवाले होती हैं, देहातें इनके हवाले होती हैं। अब इस हवाले से अब आप मुझे बताएं कि हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर और कैसे हमारे हालात गुजर रहे हैं, इनको तो हम ही जानते हैं ना, जो लोग भुगत रहे हैं। लाहौर में बैठा हुआ आदमी तो शायद इनका एहसास ना कर सके, वो तो अभी वहाँ अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, लेकिन हमारे यहाँ जो हालात हैं उनको शायद वो इदराक नहीं कर पा रहे। हुकूमत ने कहा है कि जी फेडरल गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, इसलिए हम खुद जो है वो पहल करेंगे। तो ये बताएं कि जो बयानात आ रहे हैं वज़ीर आला की जानिब से, तो अमीर मकाम ने भी ये कहा है कि ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाए, इसकी हिमायत करेंगे आप? अभी तो हम गवर्नर राज की तरफ नहीं जाना चाहते, और अगर अमीर मकाम जाना चाहते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उनकी है, वो क्या फ़ैसला करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि न मरकज़ में आवाम की हुकूमत है, न सूबे में आवाम की हुकूमत है। मैंडेट दोनों जो है ना वो जाली किस्म के हैं।